I come in, sir? Please come. Good afternoon, sir. Betty, please sit Thank down. you so much. Sonam, Yes, sir. you have done your law in 2019, Yes, sir. and after that you have joined the Rural Development Department. Yes, sir. Which year? 2021. 21, sir. So you are working as accounts Panchayat assistant, Panchayat. accounts assistant in Panchayat. Yes, sir. And this is your first exam for the Munsif? No, sir. I have appeared in last year also for interview, judicial services interview. Would you like to speak in English or are you more comfortable in Hindi? Sir, English, sir. English? Yes, sir. Okay. ठीक. So, what motivates you to join the judiciary? So I have done my LLB in law itself, so that's why I want to join the judicial services. Also, judicial services it deals with we got opportunity to serve in serve justice, so that's why also I like to join judicial services. Will working as a say judicial judge give you some more advantage economically or something? Yes, sir. Definitely, economically we get better opportunity economically as well. Also, the status attached to the judicial. So, don't you think that you would like to become a judge because it's more prestigious? It's a better paying. You didn't say that. Sir, You said this is one of the reason I want to. One of the reasons. Yes, sir. Okay. What are the qualities of a for a good competent judge? So definitely the qualities which are required to become a judge is objectiveness and integrity. Also the integrity, hard working, and better appreciation in evidence. So that's it, sir. Decision making? And yes, sir. Decision making is one of them. Communication skills? Yeah, yes, sir. Also communication skill also. Communication skills. Both oral as well written, because he has to speak. Yes. He has to write judgments also, Yes. because nobody is going to write judgments for Yes, him. judge has Otherwise, he'll be overpowered. He'll be overpowered, or ChatGPT will write his judgments. to. Yes. Right. Do you have these qualities? Yes, sir. I think so. I have these qualities, but I am better prepared for learning also. I will definitely improve my qualities with time, with training if inducted to judicial services. So you have all the qualities of becoming a good judge. Yes, Do you think you have any weakness also which can sabotage your this ambition? Sir, yes, I am emotionally attached person. I easily attach to things, but yes, sir, with this weakness, I am trying to improve my weakness with more reading books and also reading law. Objectivity will inculcate more for better controlling my emotions. कितना इम्पोर्टेंट है ड्राफ्टिंग इन लीगल प्रोफेशन? सर, ड्राफ्टिंग बहुत ज़रूरी है लीगल प्रोफेशन में, क्योंकि जो प्लीडिंग रहती है वही जो है वो एक फॉर्म ऑफ एविडेंस बनती है. तो प्लीडिंग जो है वो कंसाइज होनी चाहिए, अप टू द लॉ होनी चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी. वहाँ से हमें इतना इन्फ्लुएंस मिलना चाहिए कि हम एक अगर क्रिमिनल केस है तो हम उससे जो है इश्यूज फ्रेम कर सकें, और अगर सिविल लॉ है उसमें भी हमें जो फैक्ट्स हैं, जो इश्यूज हैं वो हम फ्रेम कर सकें. तो हमें प्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ड्राफ्टिंग जो है वो इम्पोर्टेंट रहती है उसके लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, बेटर अप्रिसिएशन के लिए और एप्लीकेशन ऑफ माइंड. ये जो चालान पेश होता है ना पुलिस वाले जो करते हैं, ये कौन सी वाली सेक्शन है? सर, BNSS की. सर, इट्स 183 BNSS है, जिसमें जो चार्जशीट जो है वो फाइल की जाती है. पहले क्या था CRPC में? सर 187. नहीं, ये CRPC में. CRPC 178. 178, yes, sir.
इसमें ट्रायल में और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस ये दो अलग चीज़ें हैं या पार्ट ऑफ द सेम? सो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो है वो इससे पहले रहता है, इससे सॉरी ये पहले रहता है, ट्रायल से पहले होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। जब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है उसके बाद ही जो है वो ये अगर सेशन ट्रायल है या वारंट ट्रायल है, अलग अलग का प्रोसीजर रहता है कि उसके बाद विटनेसेस को बुलाया जाता है, देन उसके बाद ट्रायल बिगिन होता है। तो जो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस है वो प्री रिक्विजिट है फॉर द बिगिनिंग ऑफ द ट्रायल। तो उसमें क्या रोल रहता है मैजिस्ट्रेट साहब का, ट्रायल जज का, जो भी सुन रहा है केस को, क्या देखेगा और क्या नहीं देखेगा ताकि ये एक मिनी ट्रायल ना बन जाए? सर उसमें जो फ्रेमिंग ऑफ इशू चार्जेस हैं, तो जो चार्ज फ्रेम किया जाता है उसमें ऑफेंस का बताया जाता है कि ऑफेंस जो है, कह रहे हैं उस वक्त क्या देखेंगे वो जज साहब? अगर चार्ज लगाएंगे ना, देखो किसी को गलत चार्ज भी लगाया होगा तो वो डिस्चार्ज भी हो सकता है, समन में तो एक्विट भी हो सकता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि क्या देखना होता है उस वक्त? अक्सर जो भी जो एविडेंस जो उस टाइम दिए गए होते हैं, जो या कोई विटनेस जो है अगर वो अपीयर होता है तो उनके जो है वो एविडेंस देखे जाते हैं, उनको अप्रिशिएट। नहीं, विटनेस तो अपीयर अभी नहीं ना होंगे, अभी तो हमने डॉक्यूमेंट्री देखना है ना, तो उनके खिलाफ क्या इकट्ठा सबूत किया है ये जानना चाहते हैं कि उस वक्त जैसा आपके दिमाग में क्या है कि नहीं जी चार्ज लगा दूंगा मैं या चार्ज नहीं लगना है, मतलब दिमाग जैसा आपके दिमाग कैसे चलेगा, उस क्या क्या देखेगा वो? तो वो मतलब ये चीज़ देखेंगे कि ये चार्ज एक्चुअल में जो जितने भी एविडेंस जो भी उनके पास आगे प्लीडिंग डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है, कोई भी एविडेंस जो अगर वो एफआईआर जो पुलिस रिपोर्ट रहती है वो है, या फिर कंप्लेंट केस में जो भी एविडेंस उन्होंने कंप्लेनेंट ने दिए हुए हैं। इसकी देसी भाषा में इसका एक है जो मैं हर एक को बोलता हूँ, ये है कि अगर जैसा वो उस वक्त सारा ये चीज़ माने, सच है या झूठ है, क्या कन्विक्शन हो सकती है, तो फिर वो चार्ज लगा सकता है, मतलब गलत भी हो सकता है। कहते हैं प्राइमा फेसी हाँ, बोले प्रथम दृष्टि में लगता है कोई जुर्म हुआ है तो चार्जेस लग जाएंगे, फिर उसको ट्रायल होगा जिसमें एविडेंस होंगी, विटनेसेस होंगी, डिफेंस प्रोसिक्यूशन होगा, फिर उसका जैसा फैसला करे, इस समय होता है प्राइमा फेसी। लेकिन इसमें भी यही है ना, जो क्यों लगाएंगे, मतलब प्राइमा फेसी में भी देखना क्या है प्राइमा फेसी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा मिनी ट्रायल आपने नहीं करनी है, आपने एग्जॉस्टिव नहीं करना, लेकिन कुछ जजमेंट्स ऐसी भी है कि नहीं करना, क्योंकि किसी का राइट टू लिबर्टी का मसला है, राइट टू लाइफ का मसला है, इसलिए मिनी ट्रायल नहीं। तो आपका यही एक है, अगर जज साहब जो है पूरा यहाँ देख के दिमाग में उसकी एक फेयर ओपिनियन बन गई कि नहीं बनता है, मतलब इसको सज़ा हो सकती है, तो चार्ज लग सकता है। आप मुझे ये बताइए, जब कानून चेंज हो गया ना, अभी पहले सीआरपीसी था, अब बीएनएसएस है और बीएनएस आ गया आईपीसी की जगह, एक ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ है पहले, जबकि अभी गजट में नोटिफाई नहीं हुआ था बीएनएस, तो उसमें प्रोसीजर क्या फॉलो होगा? सो अगर नोटिफाइड नहीं हुआ है तो सीआरपीसी का ही प्रोसीजर जो है वो फॉलो होगा। डेट ऑफ कमीशन, मैम डेट ऑफ कमीशन जो है वो नोटिफिकेशन से पहले का है, मसलन किसी ने 420 किया हुआ है आईपीसी, ओके सर। तो अब आपने एफआईआर लगानी है, अब आया हुआ है, पता लगा कि ये 420 हुई है, तब वो एफआईआर जो है वो लगी 420 में, तो प्रोसीजर कौन सा फॉलो होगा? सीआरपीसी या बीएनएसएस? सो जैसे कि आपने बताया कि ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ है ये बीएनएसएस नोटिफाइड होने से पहले, तो सर सीआरपीसी ही लगेगा, क्योंकि कमीशन जो है वो उसी टाइम पे हुआ है जब सीआरपीसी इन्फोर्स थे। एफआईआर अब लगी है, सर कमीशन ऑफ द ऑफेंस देखा जाएगा। वो तो बीएनएस तो लग गया ना, बीएनएस नहीं आईपीसी लग गई है सर। तो प्रोसीजर कौन सा फॉलो होगा फिर? सर सीआरपीसी सर, और क्योंकि कमीशन जो एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस जो भी बीएनएसएस लगेगा। नहीं, जिस जब ऑफेंस अगर पहले से ही कमीशन ऑफेंस तो उसी लगेगा, क्योंकि सर ऑफेंस तो लगेगा वही, मगर प्रोसीजर फॉलो होगा आज का। इसमें अभी भी जो नहीं लगेगा वही लगेगा।
जब कमीशन ऑफ द ऑफेंस हुआ था तब तो ये कानून था ही नहीं। मगर जब एफआईआर लगी तो उस वक्त तो प्रोसीजर तो चल रहा था ना, बिकॉज यू आर रजिस्टरिंग द केस लेटर। इसमें वो बिंदल साहब और दर साहब की जजमेंट है नहीं, ना ना ना, इसमें भी डिस्प्यूट ही है ना। We'll look into it. आप देख वो लीजिएगा। बिंदल साहब की जजमेंट है, एक देख लें। Okay, बिंदल sir. साहब और ऑनरेबल जस्टिस दर की जजमेंट है। I will look into it. You're interested in reading fiction. Yes sir. Which fiction? In हिंदी, अंग्रेजी, कौन सा? Sir, English में ही। English में। तो what is the latest book you have read? Sir, I have read Metamorphosis by Franz Kafka. So this book portrays about social alienation and dehumanized behavior. So how old is this book? Sir, this book is published in 2020 only. Okay. काफका, फ्रांस काफका Yes sir, Franz Kafka. तो पुराना होगा काफ़ी। पुराना होगा ये तो, प्रिंट एडिशन भी इसकी Print होगी। edition sir. सर मैंने वही देखा था तो 2020। वो जो इंसेक्ट बन जाता है मेटाफर। Yes sir, it's only. So interested in reading any Indian fiction also? Sir, fiction sir मैंने recently पढ़ी, I can't say goodbye to you. It's by ऋत्विक सिंह। तो मैंने वो भी पढ़ी है, तो वो एक इमोशनल अटैचमेंट पे है एंड डोमेस्टिक वायलेंस केस। Okay.